Hello everyone, how are you all? Good afternoon. Good afternoon, sir. I am fine. What about you? I'm also fine. Thank you, beta. Good afternoon, everyone. Beta, in this class, today's evening live class, we are going to revise the things what we studied in our last class. And also, we have to complete exercises. साक्षी गुप्ता, प्लीज माइक बंद करो. आप जैसे जैसे पेज पलट रही थी, ऐसे आवाज आ रहा था. ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ. बेटा, in last class, what we did study? We studied about the wind. In the chapter number 7, we have studied about the winds, and in our last live class we studied about the usage of wind. तो usage of wind के बारे में पढ़ाया गया था, आप लोगों से पूछा भी गया था, सभी को ध्यान है? Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me how many can tell at least 5 uses of wind? How many can tell at least 5 uses of wind? How many can tell? Show me your hand. Raise your hand. Who can speak at least कम से कम 5 uses of wind? Usage of wind आप सभी को बताना है. चलो one by one everybody have to speak. सभी को एक एक करके बताना है. So first of all, Aradhya Verma, beta, you have to speak. Yes, sir. Tell me one use of the wind. Flying kite. Wind helps. Dry cloth. वर्मा, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि wind है, wind helps Yes, sir. to fly the kite. जो wind है वो हमें पतंग उड़ाने में मदद करता है ना, तो wind helps to fly the kite. Okay, one use already Aradhya Verma has told. The another use, साक्षी गुप्ता, एक बार आप कोशिश करिए. बेटा माइक ऑन करो, आप बताइए. One use of Wind helps fly kite. the wind helps fly kite. ये ऑलरेडी आराध्या वर्मा ने बता दिया है. You have to tell another use of wind. कोई दूसरा यूज बताइए. रमा तिवारी, रमा साक्षी, कोई भी बताइए. Washing clothes. रमा तिवारी ने बोला, क्या बोला बेटा? Washing clothes. वॉशिंग क्लॉथ में विंड का क्या रोल है? वॉशिंग क्लॉथ में विंड का क्या रोल है? इट्स रॉन्ग, कोई रोल नहीं है. कपड़ा सुखाने में अगर हवा नहीं रहेगा, विंड नहीं चलेगा. अगर हवा नहीं चलेगा तो कपड़ा नहीं आप वॉश कर सकते हैं. क्यों नहीं कपड़ा वॉश कर सकते हैं? इट्स रॉन्ग. कोई और कौन बताना चाहेगा? शिवांगी, अनन्या के पास में आऊंगा अभी. कंचन, एक बार आप कोशिश करिए. कंचन, आनंदधर, आप बताइए. अनंतधर द्विवेदी. Wind helps us dry clothes. Wind help us. Wind helps us dry. Wind helps to dry clothes. Cloth नहीं, clothes. कपड़े को सुखाने में wind help करता है. Good, that is the correct answer. Yes, sir. Wind help to dry clothes. It has been written. Where it has been written? It also helps us fly kites in dry wet clothes. जो है wet clothes को, यानी गीले कपड़े को ड्राई करने में wind help करता है. Wind help to dry wet cloth. क्लोथ नहीं, wet cloth. जो गीले कपड़े रहेंगे उसी को सुखाएगा, कि जो सूखा रहेगा उसको भी सुखा देगा. No, sir. Next, Ananya Singh, tell me the another use of wind. Dry clothes or flying kite के अलावा. Wind helps to rotate. Windmill rotate. क्या आप फिर से बोलिए? It is not clear what you are speaking. Wind help us. Wind help us. Windmill rotate. No, you are telling wrong. Wind help us. Wind हमारी help करता है. as मतलब हमारी मदद करता है. windmill rotate करने के लिए. आप जो कहना चाह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन you are not able to
frame your sentence, you are not able to frame the answer. आप आंसर को कैसे बोलना है, कैसे फ्रेम करना है सेंटेंस को, आप वो नहीं कर पा रही हो. Who can speak? वेदांत, आप एक बार कोशिश करिए. What the Ananya want to say? आप उसी चीज को आप क्या बता सकते हैं? शुभांगी त्रिपाठी. The wind helps. वेदांत बताइए. The wind helps rotate windmills to producing electricity. बेटा विंड हेल्प्स टू रोटेट विंडमिल्स. विंडमिल्स को नहीं रोटेट करता है, विंडमिल्स के में जो ब्लेड लगे होते हैं ना उसको रोटेट करता है. किसको? विंडमिल्स को रोटेट करता है या ब्लेड को? सब ब्लेड्स को. सब आनंद द्विवेदी बैठ करके नहीं पढ़े. अगर आपका फोन आपके हाथ से नहीं हटा तो मैं भी आपको क्लास से बाहर कर दूंगा. आनंद द्विवेदी ध्यान से सुनिए. यू हैव टू पुट योर फोन ऑन द मेज, या जैसे आप पहले पढ़ाई करते थे एक जगह प्रॉपर्ली रख करके उसी तरह से पढ़ाई करिए. बार बार आपका अगर फोन मूवमेंट हो रहा है तो मैं आपको बाहर कर दूंगा. विंड जो है वो विंडमिल्स करता है, विंडमिल्स के ब्लेड को रोटेट करता है. विंड हेल्प्स टू रोटेट द ब्लेड ऑफ विंडमिल्स, ब्लेड ऑफ विंडमिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, नाउ शुभांगी त्रिपाठी, also you need to tell one more use of wind. Yes, sir. Sir, wind carries some varieties of seeds from one place to other. This helps new plants grow. Wind help to carry variety of seeds from one place to another place. जो variety of किसी भी plants के seeds जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं winds. ठीक है. It helps to grow more plants in this way. स्वाति सिंह बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, डोंट वरी. मुझसे पूछने के नाम पे आपने वीडियो बंद कर लिया, परेशान मत हो, मैं आपसे पूछूंगा नहीं बेटा, आपको नहीं आता मुझे पता है. पूछने के नाम पे तुरंत वीडियो बंद कर लिया आपने. नहीं पूछूंगा तो आपको नहीं आएगा. आपको एक क्लास मैंने आगे किया था, फिर से मैं पीछे कर दूंगा अगर नहीं आएगा. एक क्लास आप आगे की गई थी ना, एक क्लास पीछे कर दी जाएंगी अगर नहीं पढ़ना आएगा आपको, नहीं पढ़ेंगे ध्यान से. चलो, इसी पे बेस्ड आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है. पहले क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था, हाउ डज विंड हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो. हाउ डज विंड हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो, इसको डिस्कस किया गया था. इसका आंसर यहाँ पे है ना. Yes, sir. Some varieties of seeds from one place to another. This helps new plant grow. पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लिखा है ना, लिख ले जाएंगे सभी लोग. Yes, sir. फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको क्लास में कराया गया. कितने लोगों ने कंप्लीट किया है फिल इन द ब्लैंक्स? ये कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? सर हमने बोलना नहीं है, जस्ट बोलना है. कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया है वो अपना हैंड रेज करें. अच्छा, कितने लोगों ने कंप्लीट करके इसका फोटो ग्रुप में भेज दिया है वो अपना हैंड रेज करें. अभी फोटो नहीं भेजा है कई लोगों ने. फोटो कौन कौन भेजा है वो अपने हैंड रेज करें. जिन्होंने फोटो नहीं भेजा है वो नहीं हैंड रेज करेंगे. नन ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट, ओनली अमन गुप्ता. अमन गुप्ता, आपने इसका फोटो कब भेजा है? नहीं भेजा. नहीं भेजा. हैंड डाउन करिए. इसको समझाया गया था, इसको कंप्लीट करके आप इसका पिक जो है, इसका फोटो जो है अपने वर्क का, आप इसको ग्रुप में भेजें. अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा. मैं पढ़ाऊंगा पर नहीं पढ़ाता हूं तो इसका मतलब आपको होमवर्क भी तो कंप्लीट करना चाहिए. चलिए एक बार मैं फिर और समझा देता हूं. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दैट कीप्स अ स्कूल ऑन हॉट डेज. व्हाट थिंग कीप्स अ स्कूल ऑन हॉट डेज? क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? बताइए कोई भी बताइए. नेक्स्ट बी क्वेश्चन में मूविंग, कौन सा मूव करने वाला? क्या मूविंग? कौन सा मूविंग है? एयर क्या है? मूविंग एयर किसको बोलते हैं?
विंड को बोलते हैं। मूविंग विंड नहीं होगा, मूविंग विंड, विंड ही आपका मूविंग एयर है। विंड हेल्प्स किसके, विंड किसके लिए, मतलब क्या हेल्प करता है? इन सीज एंड कोशियंस। The watch and Watch sailboat and sailboat और seas and ocean. ocean. WATCH यार्ड्स एंड क्या है? sailboat. Sailboat. The sailboat. सेल बोट। Sailboat. ओके, नाउ द नेक्स्ट, विंड हेल्प्स मूव इन द स्काई। किसको, विंड किसकी? Cloud. The clouds. विंड हेल्प्स Clouds. 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 क्लाउड्स। विंड हेल्प्स मूव इन द स्काई। सभी लोग कैसे कंप्लीट कर ले जाएंगे? हाँ, साक्षी Yes, नोट कर रही है। Yes, sir. साक्षी देख देख के कॉपी कर रही है, छपाई कर रही है। रौनक से भी छपाई कर रहे हैं। बेटा अभी मुझे पता था जब मैं लिखूंगा तो कई लोग छापने लगेंगे। छपाई नहीं करना है, पढ़ाई के समय आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। आफ्टर द लाइव क्लास जो ये पढ़ाया गया है, जो कराया गया है, इसको ध्यान रखना है, आपको कंप्लीट करके तब वो फोटो भेजना है, ठीक है? अगर आप भूल जाए, रिकॉर्डिंग जब आपको भेजा जाता है, रिकॉर्डिंग देख लिया करें। बेटा उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, जरा एक बार उसको ध्यान देते हैं। और इस तरीके से आज चैप्टर हम ये कंप्लीट कर चुके होंगे। हमने क्या पढ़ा? विंड क्या कहते, विंड किसे कहते हैं? व्हाट इज विंड? व्हाट इज विंड? रमा तिवारी, व्हाट इज विंड? Moving air is called wind. वेरी गुड आनंद, The what is moving- wind? Moving is called wind. The moving air is called Yeah, it's called wind. आराध्या वर्मा, व्हाट इज विंड? Some moving air is called wind. ओके गुड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब विंड के प्रॉपर्टीज बताइए। विंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना। विंड का एक पहली प्रॉपर्टीज की विंड हैज डायरेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? ध्यान से सभी लोग सुनिए, अभी मैं पूछने वाला हूँ। पहली प्रॉपर्टीज विंड हैज डायरेक्शन। सेकंड, विंड हैज स्पीड। तीसरा क्या है? विंड हैज फोर्स। चौथा क्या है? विंड ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम। चार चीजें आपको विंड के बारे में बतानी है। ये आपके 2 लाइनों में लिखा है। विंड हैज डायरेक्शन, स्पीड, फोर्स एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक समय पे जो विंड है मूव्स इन वन डायरेक्शन। ये चौथी प्रॉपर्टीज है। ये चारों ध्यान रहेगा ना? चलिए शुभांगी Yes, त्रिपाठी, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइक वीडियो ऑन करके, किताब देख करके नहीं बताना है, वैसे सुन के बताना है। The video. हाँ बताइए, चारों प्रॉपर्टीज बताइए जो अभी मैंने बताया। वेदांत आप बताइए। The wind has Some moving air is direction. called wind. Some moving air is called wind. वेरी गुड। और Some wind has direction, speed and force. विंड हैज डायरेक्शन, स्पीड एंड फोर्स। वेरी गुड, 3 चीज हो गए। और एट ए Some पर्टिकुलर moving air is called wind. ओके, वन मोर थिंग, एक चीजें और पढ़ाया गया। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। ये जेंटल विंड मतलब जब व्हेनेवर योर विंड इज मूविंग एट अ स्लो स्पीड, जब वो धीमे स्लो स्पीड में जब विंड आपका मूव करे तो क्या कहलाएगा? स्टॉर्म। क्या कहलाएगा? ब्रीज। And when the wind is moving at the high speed, whenever wind is moving at high speed, then it will be called a The storm. storm. Very The good. storm. Storm. Okay. Now बेटा अभी आपका इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 7 है बुक ए में सभी का कंप्लीट हो जाएगा। किसी का कुछ तो नहीं बचेगा ना? No, sir. बुक ए में इसको कंप्लीट कराया गया था ना? ये सारी चीजें कंप्लीट करा दिया गया था ना? Yes, sir. एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, व्हाट इज सेंटर?
What is thunder? Thunder क्या है? Who can speak? Who can tell me about the thunder? Raise your hand. Without seeing the book, without अभी आंखें बंद करके बताना है वेदांत, बहुत हो गया। अनन्या सिंह बताइए, आंखें बंद करके, आंखें बंद करिए पहले। Sam. Thunder. हाँ, thunder. Subway speed air is called a thunder. No, wrong. Anybody else? और कौन थंडर के बारे में बता सकता है? किसी को भी नहीं पता थंडर क्या होता है? नहीं, चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं बताऊंगा उसके बाद फिर पूछूंगा सबसे। बी लिसन, मतलब बी लिसन वगैरह मत बोलिए, साफ साफ ऐसा बोलिए। कोई पूछे व्हाट इज थंडर? लाउड साउंड। लाउड साउंड यानी बहुत तेजी से जो आवाज है। साउंड मतलब आवाज होता है ना, लाउड मतलब बहुत तेज। लाउड साउंड which comes from the sky, कहां से आता है? From the sky after lightning is called The sky. okay? Thunder. A loud sound which comes from the sky, the very loud sound that comes from the sky after lightning during a storm is called the thunder. देख ले जाएंगे ना? Yes sir. चलिए मैं एक बार लिख भी Yes देता हूँ, sir. लिख भी देता हूँ, किसी को ना समझ में आए तो आप यहाँ पे नोट करें। A very loud sound that comes from the sky. Sky. The sky. That comes from the sky after lightning. चमकने के बाद LIGHT After NING. After lightning. After lightning. a storm is called thunder. A storm is called Thunder. ओके। थंडर क्या है अभी आप समझ में आ गया? Yes sir. क्या है थंडर? जरा एक बार आप देख करके बताइए, देख करके, बिल्कुल सामने लिखा है। जस्ट एवरीबडी हैव टू स्पीक वन बाय वन। रमा तिवारी नहीं, सबसे पहले वेदांत वर्मा आपको बोलना है। व्हाट इज थंडर? वेदांत वर्मा इज नॉट कनेक्टेड। वेदांत वर्मा कनेक्टेड है, इन्होंने वीडियो बंद कर रखा है, कहीं टहलने चले गए हैं। चलिए शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए। Yes. Yes, sir, a very loud sound that comes from the sky after lightning during a storm is called thunder. वेरी गुड। सुमित जरा आप बताइए, व्हाट इज थंडर? A very loud sound that comes from the sky after ना भी नहीं जानेंगे, देख करके भी आप नहीं बता पा रहे, बिना देखे कैसे बताएंगे? और रौनक सिंह जरा आप बताइए माइक ऑन करके, व्हाट इज थंडर? A very loud sound that comes from the sky after letting and a storm is called thunder. ध्यान से सुनिए, a very loud sound that comes from the sky,
that comes from the sky after lightning है ये, lightning during, after lightning during a storm, during a storm is called thunder. ठीक है? बंद करके बताएं। नहीं ठीक है, अभी इसके बाद वाले कई सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल आस्क ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी। तो व्हाट इज थंडर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड भी मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। हु कैन स्पीक व्हाट इज स्पीड? शुभांगी त्रिपाठी बताइए। Sir, speed. Sir, how fast an object moves. हाँ बेटा फिर से बोलिए, आपने सही बोला, फिर से बोलिए। Sir, speed is how fast an object moves. वेरी गुड। स्पीड इज फास्ट an object moves. Okay, what is speed? स्पीड का डेफिनेशन आप लोग अगर आपसे पूछा जाए अनन्या सिंह क्या बोलेंगी आप? व्हाट इज स्पीड? स्पीड की डेफिनेशन। हाँ यस, व्हाट इज स्पीड? अगर कोई पूछे व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है? सर हम बताएं, सर हम बताएं। How fast an object. How fast an object moves. साक्षी गुप्ता आप बताइए। Speed is how fast an object moves. अनंतधर द्विवेदी। Speed is how fast आराध्या वर्मा। Speed is how fast an object moves. वेरी गुड। रमा तिवारी। Speed is how fast an object moves. रौनक सिंह। Speed is in the move. चलिए ठीक है, अब बताइए अनन्या सिंह, अब आप बताइए व्हाट इज स्पीड? Speed is how fast object move. हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। वेरी गुड, यानी आपको याद हो गया, आपको याद हो गया। चलिए ठीक है, आराध्या वर्मा एक बार आप बताइए। Speed how fast an object moves. स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ओके चलिए ठीक है। नाउ आफ्टर दैट Speed is an यूसेज ऑफ विंड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस थी, इसको भी आपको कंप्लीट करना है आज। ये पढ़ा करके इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, पहला क्वेश्चन है यूसेज ऑफ विंड में, लिस्ट कंप्लीट दी सेंटेंसेस अबाउट विंड बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। आपको अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे आपको बताना है। ओके आपको स्वयं बताना है। द फर्स्ट वन इज द विंड कैन ब्लो अ, ब्लो मीन्स क्या होता है पहले ये बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लो? ब्लो मीन्स क्या होता है? हु कैन स्पीक? ब्लो मीन्स क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए अनन्या, ब्लो मीन्स क्या होता है बेटा? Blow means हाँ फूकना. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विंड कैन ब्लो अ, अब क्या कर सकते हो, विंड किसको फूंक सकता है? व्हाट शुड आई राइट हियर?
शुभांगी The wind त्रिपाठी, can blow. शुभांगी, what should I write here? Yes, yes. The watches. The watch. यस शुभांगी, क्या लिखें बेटा? The watch. The watch. क्या बोल रही हो, मुझे ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा। The wind can blow our watches. What you are telling बेटा, it's not clear, एक बार फिर से बोलिए। The watches. स्पेलिंग क्या होगी? Yes, sir. Y-A-T-C-H. YATCHS, वॉचेस को ब्लो कर सकता है। हाँ ठीक है। सर हम बता हाँ बेटा अनन्या बताइए। wind can blow a smoke. क्या लिखा है? ब्लो अ Smoke. स्मूथ, क्या मतलब स्पेलिंग बताइए। Sir, SMOCK. अच्छा, ब्लो अ स्मोक, यानी जो स्मोक है, धुआं है, उसको भी बहा सकता है, उसको भी फूंक सकता है इधर उधर। चलो ठीक है, आपके समझ में जो भी आंसर आ रहा है, स्मोक को भी जो विंड है एक तरफ ले जा सकता है, फूंक सकता है। ठीक है, कई बार होता है जब धुआं आपकी तरफ आता है तो आप भी अपने मुंह से तो ब्लो कर देते हो ना, फूंकते हो तो उधर ब्लो, उधर धुआं उड़ने लगता है ना। तो जो विंड है वो Yes, स्मोक sir. को ब्लो कर ही सकता है। दैट इज करेक्ट, स्मोक इज आल्सो द राइट आंसर। याक्स लिखा वो भी सही आंसर है। बैलून को भी कहीं ना कहीं ब्लो कर किया जा सकता है, तभी तो एक डायरेक्शन में उड़ता है। तो इट इज ऑन यू दैट Sir, smoke is spelling SMOCK होगा ना? SMOKE, स्मोक। ओके, Yes, sir. Sir. Smoke के अलावा उसके बाद और भी कुछ लिख सकते हैं? कोई भी, जिसको भी आपको लगता है कि विंड कैन ब्लो, जिस भी चीज को लगता है कि विंड कैन ब्लो, यू कैन राइट द थिंग्स नेम। ओके, जैसे लिख देंगे स्मोक, बलून। हाँ, इट इज ऑन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल दैट की व्हाट यू ऑल वांट टू राइट। इट इज ऑन यू ऑल, आप कुछ भी लिखिएगा यहाँ पे। अभी सभी लोग ये पहला कर ले जाएंगे ना? क्यों रौनक, आनंद, रमा तिवारी कर ले जाएंगे ना? अमन गुप्ता कर ले जाएंगे बेटा। आराध्या, Yes, sir. Sir, कर ले। now the second question is wind helps fly a, wind helps fly a, क्या होगा यहाँ पे? what should I write? Very good. Kite is the correct answer. Right. Now next wind can shake, shake means क्या होता है? shake means होता है मिलाना। ठीक है, shake means क्या होता है? मिलाना। होता है कि आप कई बार मैंगो शेक आप लोगों ने पिया होगा ना? मैंगो शेक, आई होप एवरीबॉडी हैव ड्रंक। Yes, sir. तो वो क्या होता है, मैंगो और भी कई सारी चीजें मिला करके शेक किया जाता है ना, मंथन किया जाता है ना, मिलाया जाता है ना, मिक्स किया जाता है। Yes, sir. शेक को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, शेक का मतलब वही निकलता है। तो व्हाट विंड कैन शेक, किसको विंड शेक कर सकता है? व्हाट शुड आई राइट हियर? सोचिए एक बार, जिसको भी समझ में आए बताइए, विंड किसको शेक कर सकता है? Now tell us beta, what wind can shake? बताइए। Wind can shake us a thunder. Wind can shake a, क्या बोल रही हो बेटा? थंडर। थंडर को जो विंड है वो शेक कर सकता है। थंडर क्या होता है आपको पता है? एक साउंड होता है जो चमकने के बाद आपको बहुत तेजी से जो आसमान से साउंड आता है उसको शेक करता है विंड।
मतलब हिलाना, एक तरीके से हैंडशेक आप करते हैं, हिलाना आप। अच्छा ये बताइए हैंडशेक करते हैं कि नहीं? हैंडशेक कैसे करते हैं? हैंडशेक एक दूसरे का हैंड पकड़ के आपस में तो इसी तरीके से विंड और भी कुछ चीजों को हिला सकता है कि नहीं? किसको किसको हिला सकता है? सर हम बताएं? The trees. सर ट्री, यस सर, वेरी The trees. ट्री, The trees. सभी लोग, ट्री, trees is a correct answer, very good. Wind can shake a tree. किसी एक ट्री को शेक कर सकता है बेटा। शेक में से एक तरीके से मिलाना भी होता है, हिलाना भी होता है, मतलब मूवमेंट करना। थोड़ा सा शुरू में मैंने मिलाना बताया था, इसी वजह से आप लोग शायद कंफ्यूज हुए हो। विंड कैन शेक अ ट्री, शेक किसी ट्रीज को वो हिला सकता है, मूवमेंट करा सकता है। ओके, नाउ द लास्ट वन, आई कैन फील द विंड। मैं विंड को फील कर सकता हूँ। व्हेन के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? When it blows. कब आप फील करते हैं विंड को? When it करता है विंड। blows. चलो ठीक है, फिर से वन बाय वन इस तरह बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अनन्या आप चिल्लाती रहोगी, आपकी आवाज कट के आएगी ऐसे। आप जब चिल्ला के बोलोगी तो आवाज साफ नहीं आएगा। नॉर्मली बताइए, व्हेन आई कैन फील द विंड। अनन्या सिंह आप बताइए। सब लोग जब ये चलेगा, जब ये बहेगा, व्हेन विंड ब्लो। ओके, ब्लो करेगा सब मिला के, व्हेन इट्स ब्लो। अनन्या सिंह ने ये बताया, लेकिन शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए क्या है सही आंसर इसका? व्हेन वी कैन फील द विंड। The blow. आपके हो सकता है आपके बुक में दिया भी हो। चलो लेट अस सी। The blow. ब्लो मींस क्या होता है? उड़ना। The urna. ब्लो मींस उड़ना, जब चलना। Okay. Wind, moving is called wind. We can feel wind when it blows around us. When it blows around us, जब ये हमारे आसपास चलती है, ठीक है, बहती है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे आप? The blow. When The blow. it blows around us, क्या लिखेंगे? blows around us। जब हमारे आसपास चलेगी, ब्लो करेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि कहीं पे भी ब्लो करेगी और आपको पता चल जाएगा। No. When it blows around us, ठीक है, this is the correct answer. Now the next question, how is wind used to produce electricity? The last question is, how is wind used to produce electricity? Who can speak the answer of this question? शुभांगी त्रिपाठी बताइए। Yes, the wind helps the blades of windmills rotate to produce electricity. Very good. Wind helps to rotate the blade. Blade को rotate करता ना, किसके blade को? Windmills के। When actually windmills. क्वेश्चन क्या है? How means क्या होता है? कैसे? How is wind used to produce electricity? Wind का यूज कैसे किया जाता है? To produce the electricity. Electricity produce करने के लिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे? Wind helps to rotate the blade of windmills. Wind जो है help करता है। Wind helps किसकी? To the blade of, to rotate the blade of, blade को rotate करने के लिए। Wind helps to rotate the blade of windmills to produce the electricity. Okay? यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ भी है, into your book there is an answer. Wind helps the blades of windmills rotate to produce electricity. Okay? और वही लिख दे। हाँ वही लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं, लेकिन बेटा जो अपने मर्जी से आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो in this way just we have completed the chapter. Now everybody need to send a pic of their work.
अब ये चैप्टर जब तक आप लोग पूरा वर्क कंप्लीट करके भेज नहीं देंगे, मैं अगला चैप्टर उस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर नंबर 8 शुरू करूंगा, नया चैप्टर। लेकिन चैप्टर नंबर 7 जब तक आप वर्क नहीं सर भेजेंगे, वर्ड मीनिंग अभी बाकी है। अभी चैप्टर नंबर 7 का वर्ड मीनिंग नहीं भेजा गया है। चैप्टर नंबर 7 का सर वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। बेटा पहले सुनिए, सब लोग एक बार में रटते रह रहे हैं। एक बच्चे ने बोला वर्ड मीनिंग भेज दीजिए, तो बाकी शांत होइए, उसको जवाब देने दीजिए। वर्ड मीनिंग अभी भेजा गया है कि नहीं? मैम ने नहीं भेजा था। नो नो सर। ठीक है, भेजा जाएगा, डोंट वरी, भेजा जाएगा, ठीक है, इसको भेज दिया जाएगा। लेकिन आप इसको कंप्लीट करके भेजिएगा। जो इसको बिना कंप्लीट किए अगले क्लास में आएगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा, मैं उसको अगला चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ओके, यस सर। वन मोर थिंग, Yes, sir. एक काम आप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट अस लर्न टू मेक अ विंड सॉक। ये विंड सॉक बनाना आप सीख सकते हैं। टेक ए कलरफुल चार्ट पेपर, आप इसको पढ़िएगा, लास्ट मिनट चल रहा है, इसको समझिएगा। इस तरह विंड सॉक आप भी बना सकते हैं। टेक ए कलरफुल चार्ट पेपर एंड कट इट इनटू द हाफ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की मदद से उसको आधे पे काट दीजिए। देयर आफ्टर डेकोरेट द पेपर विद कलर्स एंड स्टिकर्स। उस पेपर को, जो कटा हुआ पेपर है, उसको कलर्स और स्टिकर से डेकोरेट करिए, सजाइए। रोल द पेपर टू फॉर्म ए सिलेंडर। उस आधे पेपर को आप रोल करके सिलेंडर के फॉर्म में कर दीजिए, यानी गोल गोल मोड़ दीजिए। ग्लू द एंड्स टुगेदर, और जो उसका एंड है उसको चिपका दीजिए। देन कट कलरफुल टिश्यूज पेपर इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड glue them around the inside of the cylinder at one end. Tie a thread across the other end and hang it near a window. तो इस तरीके से आप विंडसॉक बना सकते हैं। विंडसॉक आप लोग सर्च करिएगा, विंडसॉक आप लोग अपने घरों पे बनाइए।